پھولوں سے نازک بچے ہمیشہ ہنستے مسکراتے ہی اچھے لگتے ہیں، کیونکہ جب یہ مسکراتے ہیں تو زندگی مسکراتی ہے۔ اپنے بچوں کو پیدائش سے 2 سال تک 6 بار حفاظتی ٹیکے لگوائیں، 10 مہلک بیماری سے نجات دلوائیں۔ حفاظتی ٹیکہ جات قریبی سرکاری ہسپتال، مرکز صحت یا علاقائی ویکسینیٹر سے مفت لگوائیں۔ صحت مند زندگی کا سنہری اصول، حفاظتی ٹیکوں کا کورس بمطابق شیڈول۔ محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر، حکومت پنجاب۔ بچے ہمارے آنگن کی کلیاں ہیں، ہمارا مستقبل ہے، ہمارا کل ان کے آج کے ہاتھوں میں ہے۔ پیدائش سے 2 سال کی عمر تک 6 بار حفاظتی ٹیکے لگوائیں اور بچوں کو 10 مہلک بیماریوں سے بچائیں۔ حفاظتی ٹیکہ جات قریبی سرکاری ہسپتال، مرکز صحت یا علاقائی ویکسینیٹر سے مفت لگوائیں۔ صحت مند زندگی کا سنہری اصول، حفاظتی ٹیکوں کا کورس بمطابق شیڈول۔ محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر، حکومت پنجاب۔ یہ روشن چمکتے ہوئے چہرے سبھی کو اچھے لگتے ہیں۔ اپنے چھوٹے بچوں کو حفاظتی ٹیکوں کا کورس بر وقت مکمل کروانے کے لیے اپنے نزدیکی مرکز صحت یا ویکسینیٹر سے رابطہ کریں۔ صحت مند زندگی کا سنہری اصول، حفاظتی ٹیکے بمطابق شیڈول۔ ڈائریکٹوریٹ جنرل ہیلتھ سروسز پنجاب، محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر، حکومت پنجاب۔ زندگی کا ہر لمحہ سنہری ہے، ہر مسکراتی صبح میری ہے۔ میرا بچپن، میری مسکان محفوظ ہاتھوں میں ہے، تبھی تو خوشیاں دن میں اور سکون راتوں میں ہے۔ گھر کہیں میرے قدم ذرا بھی ڈگمگائے، رگوں میں دوڑتے پانی سے گال پھر جگمگائے۔ بابا کے ہر عمل میں میری صحت کی شنوائی ہے، ماما نے بھی ہر لمحہ اپنی ممتا نبھائی ہے۔ تندرست ہے میرا آج ہر بیماری سے بڑھ کر، تبھی تو میں ہر تکلیف سے ہوں بے خبر۔ دست اسہال کی پیچیدہ شکل روٹا ڈائریا چھوٹے بچوں کے لیے خطرناک ہے۔ دیگر 9 بیماریوں کے حفاظتی قطروں اور ٹیکوں کے ہمراہ بچوں کو 6 اور 10ویں ہفتے کی عمر میں روٹا ڈائریا ویکسین لازمی پلوائیں۔ روٹا ڈائریا ویکسین پہلے مرحلے میں ضلع لاہور، ملتان، مظفر گڑھ، خوشاب، منڈی بہاؤدین اور قصور کے تمام سرکاری ہسپتالوں، مراکز صحت اور علاقائی ویکسینیٹرز کے پاس مفت دستیاب ہے۔ بچوں کے حفاظتی ٹیکوں کا کارڈ سنبھال کر رکھیں اور ان کا بچپن محفوظ بنائیں۔ احتیاط لگاتار، تندرست شیرخوار۔ ڈائریکٹوریٹ جنرل ہیلتھ سروسز، محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر، حکومت پنجاب۔ ہمارا عزم، روشن مستقبل، پولیو کا خاتمہ ہماری منزل۔ 9 بیماریوں سے بچاؤ کے حفاظتی ٹیکوں کے کورس میں اب پولیو کا ٹیکہ بھی شامل۔ بچوں کو مہلک بیماریوں سے بچاؤ کے دوسرے حفاظتی ٹیکوں اور پولیو کے قطروں کے ساتھ ساتھ 3.5 ماہ کی عمر میں پولیو سے بچاؤ کا ٹیکہ بھی لازمی لگوائیں اور پولیو کا خاتمہ یقینی بنائیں۔ اپنے بچے کے حفاظتی ٹیکوں کا کارڈ ہمیشہ محفوظ رکھیں۔ شکایات یا مزید معلومات کے لیے مفت کال کریں 0800 99 000۔ حفاظتی ٹیکے قریبی مرکز صحت، سرکاری ہسپتالوں یا علاقائی ویکسینیٹر سے مفت لگوائے جا سکتے ہیں۔ صحت خدمت، صحت عبادت، محکمہ صحت، حکومت پنجاب۔ میں ایک ماں ہوں اور میں اپنے بچوں کی تمام ذمہ داریوں سے واقف ہوں۔ کیا آپ کو معلوم ہے اب 3.5 ماہ کی عمر میں پولیو کے قطروں کے علاوہ حفاظتی ٹیکے بھی لگوائے جا رہے ہیں؟ میں نے تو اپنے بچے کو پولیو سے بچاؤ کا یہ ٹیکہ لگوا لیا ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک نہیں لگوایا تو دیر نہ کریں، آپ کا چھوٹا سا بچہ آپ کی بڑی توجہ چاہتا ہے۔ مزید معلومات اور رہنمائی کے لیے ہیلتھ لائن 0800 990 000 پر رابطہ کریں۔ پولیو فری پنجاب کی منزل اب دور نہیں، محکمہ صحت، حکومت پنجاب۔ لاکڑا کاکڑا یعنی چکن پاکس ایک متعدی مرض ہے جس کی علامات تیز بخار، جسم پر کھجلی اور سرخ دانے، سر درد، تھکن کا احساس اور بھوک کا نہ لگنا ہے۔ احتیاطی تدابیر اپنا کر آپ خود کو اور اپنے پیاروں کو اس بیماری سے بچا سکتے ہیں۔ مریض کی تیمارداری کرتے وقت ماسک کا استعمال کریں۔ مریض کی عیادت کے بعد
हाथ कार्बोलिक साबुन से धोएं। मुतासिरा शख्स के इस्तेमाल की चीजें मसलन बर्तन और बिस्तर वगैरह अलग रखें। मरीज के जेर इस्तेमाल अशिया को ब्लीच मिले पानी से धोकर अच्छी तरह साफ करें। मरीज अवामी मकामात मसलन स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या दफ्तर वगैरह जाने से गुरेज करें। मर्ज की सूरत में घरेलू टोटके ना आजमाएं, बल्कि करीबी सरकारी अस्पताल से रुजू करें। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर, हुकूमत पंजाब। ये नौनिहाल अपने वतन के, ये फूल हैं अपने चमन के, इनसे यूं प्यार निभाना है, इन्हें खसरे से बचाना है। आओ सेहत को आम बनाए हम, बीमारियों का नाम मिटाए हम। अब खुद को ये समझाना है, इनसे यूं प्यार निभाना है, इन्हें खसरे से बचाना है। खसरा की रोकथाम पहली फुर्सत पहला काम। महकमा सेहत, हुकूमत पंजाब। बच्चा जब इस दुनिया में आता है तो उसके वालिदैन अनमोल खुशी और मुसरत के हैरत अंगेज जज्बे से रूशनास होते हैं, और दर हकीकत हम सब की ये ख्वाहिश है कि बच्चे उन तफक्कुरात से मुस्तस्ना हों जिनसे बड़ों को साबका पड़ता है। अवाम, हुकूमत और इदारे बच्चों की बुनियादी सेहत के हवाले से मुश्किलात पर काबू पाने की तग-ओ-दौ में लगे हुए हैं। इस हवाले से ये कहना दुरुस्त होगा, ये इदारे और हुकूमत हर किस्म के चैलेंज को कबूल करने की ना सिर्फ सलाहियत रखती है बल्कि पूरा पोटेंशियल भी रखती है। बच्चे की उम्र के इब्तदाई माह साल नाजुक मरहलों पर मुश्तमिल होते हैं और यूं कदम कदम पर माँ बाप और मुआलिजीन की रहनुमाई के तलबगार होते हैं। इस ज़िम्न में इनकी हिफाजत और सेहतयाबी की जिम्मेदारी हम पर आयद होती है। शीरखार बच्चों को जिन मोहलिक बीमारियों का सामना होता है, इनमें नमूनिया सरे फहरिस्त है। अगर खुदा न खास्ता किसी बच्चे को नमूनिया लाहक हो जाए तो उसके लवाहिकीन पर जो गुजरती है उसका अंदाज़ा करना मुश्किल नहीं है। आइए इस ज़िम्न में एक ड्रामाई मंजरकशी से कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। हेलो मरियम, तुम कहाँ पर हो? खैरियत तो है ज़ेबा? मरियम अली की तबीयत बहुत खराब है। कल तो बुखार हल्का था लेकिन आज बुखार तेज होने के साथ साथ सांस भी बहुत तेज तेज ले रहा है। ज़ेबा तुम बिल्कुल मत घबराओ, अब्बू और अहमद भी मेरे साथ हैं। बस ठीक है मरियम, तुम प्लीज जल्दी से आ जाओ। अरे बेटा, खैरियत तो है ना? वो अब्बू, ज़ेबा का फोन था और वो कह रही है कि राहिल घर पर नहीं है और एकदम से अली की तबीयत खराब हो गई है और उसको सांस भी मुश्किल से आ रहा है। ओ मेरे खुदा, मेरे बच्चे की तबीयत ठीक नहीं। घर जाओ उसके पास और उसको लेके फौरन हॉस्पिटल पहुंचो। मैं डायरेक्ट वहीं पहुंचता हूँ। ये अरे बच्चों आ जाओ, मैं इन बच्चों को घर छोड़ के तो मैं भी आता हूँ। चलो ठीक है। लाइन मुझे दे। डॉक्टर साहब,
वो हमारे बच्चे का क्या हाल है? आप ऐसे करें, मेरे साथ है, मेरे कमरे में है। ड्रामाई मंजरकशी का अभी कुछ हिस्सा बाकी है। आइए इस दौरान मुमताज़ मुआलिज प्रोफेसर डॉक्टर तारिक इकबाल भुट्टा की गुफ्तगू से मुस्तफ़ीद होते हैं। तकरीबन 16 लाख बच्चे हर साल दुनिया में निमोनिया और डायरिया की वजह से वफ़ात पाते हैं, और उसमें निमोनिया का जो नंबर है वो सबसे ज़्यादा है। तकरीबन 16% बच्चे इनमें सिर्फ निमोनिया से वफ़ात पाते हैं, 9% डायरिया की वजह से, और उसके अलावा दूसरी बीमारियां जो हैं, जो जिसे हम वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ कहते हैं, वो उसमें शामिल हैं। पाकिस्तान में भी ये शरह बहुत ज़्यादा है। मसलन 5 साल से कम उम्र के बच्चों में तकरीबन 90 बच्चे हर 1000 में से हर साल वफ़ात पा जाते हैं। इसको हम सिर्फ अगर श्रीलंका से कंपेयर करें, जो कि हमारे इलाके में है और गरीब मुल्क है, हमारे से कोई ज़्यादा अमीर नहीं है, वहाँ शरह मौत जो है वो 20 से कम है। तो इसका मतलब ये है कि हम भी इन अमवात को कम कर सकते हैं, लेकिन आपको उसके अलावा एक एक्टिव प्रिवेंशन करनी होती है, और उसके लिए मुख्तलिफ वैक्सीन जो हैं वो इस्तेमाल करना इंतहाई ज़रूरी है। उनमें खसरे की वैक्सीन, क्योंकि खसरा जिस बच्चे को होता है उसके बाद उसको निमोनिया होने का बहुत ख़तरा होता है और उससे मौत वाक़ हो सकती है। उसमें एक काली खांसी का वैक्सीन है, वो भी अगर आप ना दें और बच्चे को खाली खांसी हो जाए तो उसमें भी निमोनिया होने का और डेथ होने का ख़तरा होता है। तीसरी वैक्सीन जो है वो हिब वैक्सीन कहलाती है। हिब एक बैक्टीरिया है और उसकी बड़ी इफ़ेक्टिव वैक्सीन हमारे पास भी अवेलेबल है, और वो हर बच्चे को EPI प्रोग्राम के ज़रिए मुफ्त लगाई जाती है। वो लगाई जाए तो हिब से जो निमोनिया के केसेस होते हैं वो तकरीबन ख़त्म हो सकते हैं। और चौथी वैक्सीन जो पिछले दिनों में हमारे प्रोग्राम में शामिल हुई है वो निमोनिया की वैक्सीन है, जिसको न्यूमोकॉकल वैक्सीन कहते हैं, और ये अभी हम सारे मुल्क में हर बच्चे को ऑफ़र कर रहे हैं। आपने डॉक्टर साहब की गुफ्तगू सुनी और निमोनिया के हवाले से डॉक्टर साहब ने पंजाब में सूरत हाल को काफ़ी गंभीर करार दिया। आइए अब ड्रामाई मंजरकशी का इख्तितामी हिस्सा देखते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि बच्चे की हालत अब काफ़ी बेहतर है। आप बच्चे को बर वक्त ले आए हैं। बच्चे को निमोनिया है, जो कि एक बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है। निमोनिया से मौत भी वाक़ हो सकती है। नन्हे बच्चों को सर्दी से बचाना बहुत ज़रूरी है। माँ का दूध बच्चे की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होता है। क्या आप अपना दूध पिलाती हैं बच्चे को? जी डॉक्टर साहब, पिलाती तो हूँ, लेकिन वो उसके लिए काफ़ी नहीं होता, इसलिए फिर मैं आम दूध भी पिला देती हूँ। ये आपकी गलत फहमी है। हर बच्चे को उसकी ज़रूरत के मुताबिक दूध एक कुदरती निज़ाम से मिलता है। 6 माह की उम्र तक बच्चे को सिर्फ़ और सिर्फ माँ का दूध देना चाहिए। इसके अलावा घर में सफाई सुथराई का ख्याल रखना भी बच्चे को निमोनिया से बचा सकता है। देखो बेटा, ये डॉक्टर साहब के बड़े कीमती मशवरे हैं, इनको अच्छी तरह अपने पल्लू से बांध लो। जी अब्बू। और हाँ, सबसे अहम बात, हिफाज़ती टीके बच्चों की सेहत, निमोनिया और मुख्तलिफ बीमारियों से बचाव के लिए बहुत ज़रूरी हैं। क्या आपने अपने बच्चों को हिफाज़ती टीके लगवाए हैं? जी डॉक्टर साहब, एक दफ़ा लगवाए तो थे, लेकिन उससे अली को बुखार चढ़ गया था, इसलिए फिर मैंने दोबारा नहीं लगवाए। देखो ज़ेबा, हिफाजती टीके जो हैं वो बीमारियों की ढाल होते हैं, और इसीलिए मैं हर वक्त बच्चों का हिफाजती टीकों का कार्ड अपने पास रखती हूँ। अरे शाबाश, शाबाश मेरा बच्चा। जी हाँ, हिफाजती टीके 10 बीमारियों के खिलाफ बेहतरीन ढाल हैं, और याद रखिए, एहतियात बहरहाल इलाज से बेहतर है। निमोनिया के मर्ज, इसके तदारक और इलाज के हवाले से हमने एक डॉक्टर ड्रामा देखा। यकीनन जो सबक हमने इस मंजरकशी से हासिल किया, इसको एक फ़र्द और इदारे की हैसियत से हम करिया गांव-गांव आगे बढ़ा सकते हैं। इसी हवाले से अब हम गुफ्तगू सुनेंगे डॉक्टर प्रोफेसर ताहिर मसूद की, जो निमोनिया के हवाले से हमें मुफीद मशवरे देंगे। निमोनिया में 2 बुनियादी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। पहली बात तो यह है कि सांस की रफ्तार तेज़ हो जाती है, और दूसरी बात यह है कि सांस लेने में दुश्वारी होती है। सांस की रफ्तार जो है वो माँ बाप
خود اس کو काउंट कर सकते हैं, देख सकते हैं. अगर किसी बच्चे को खांसी या बुखार या नज़ला ज़ुकाम होता है तो उसमें ये पहचानना ज़रूरी होता है कि बच्चे को निमोनिया तो नहीं हो गया. और सांस की रफ्तार जो है बच्चों की उम्र के हिसाब से वेरी करती है, क्योंकि अगर बच्चा 2 महीने से नीचे है, अगर उसकी सांस की रफ्तार 60 दफ़ा 1 मिनट में उससे ज़्यादा हो तो उसमें हम कहते हैं कि निमोनिया का इम्कान है और निमोनिया हो सकता है. अगर 2 महीने से 1 साल का बच्चा हो तो उसमें सांस की रफ्तार 50 से ज़्यादा हो तो फिर निमोनिया होता है. और 1 साल से 5 साल की उम्र तक के बच्चों में अगर 40 दफ़ा 1 मिनट में सांस बच्चा उससे ज़्यादा लेता है तो इसका मतलब है कि निमोनिया का अगलब इम्कान है. एक तो ये बात होगी, और दूसरा ये होता है कि उसमें देखना होता है कि पसलियों की सिचुएशन क्या है. आम तौर पे ये तो घर में जो बड़ी बूढ़ी माएँ होती हैं वो निशानदेही कर लेती हैं कि बच्चे की पसलियाँ चलती हैं, लेकिन इसमें मैं ख़ास तौर पर बताता चलूँ कि पसलियाँ इस वजह से चलती हैं कि बच्चा जो है वो अपने सांस के लिए लड़ रहा होता है, क्योंकि निमोनिया में सांस की नालियाँ और सांस की जो खलिए होते हैं वो सारे पस से या फ्लूइड से भर जाते हैं. इस वजह से बच्चे को सांस लेने में दुश्वारी होती है. जब सांस लेने में दुश्वारी होती है तो वो ज़ाहिर इस तरह से होती है कि पसलियाँ चलती हैं. पसलियाँ चलने का मतलब ये होता है कि अगर हम पेट और छाती का वो जंक्शन जो है, जो छाती का लोअर हिस्सा देखें, निचला वाला हिस्सा देखें, तो पसलियाँ जो है ना अंदर की तरफ जाती हैं, और ये एक वाज़ेह अलामत होती है आमतौर पे सीवियर निमोनिया की या शदीद निमोनिया की अलामत होती है. बच्चों की शीरखारी का ज़माना बड़ा अहम और नाजुक होता है. अगर खुदा न खास्ता इस दौरान बच्चे को निमोनिया लाहक हो जाए तो घर का अमन सुकून दरम बरम हो जाता है. महकमा सेहत हुकूमत पंजाब ने निमोनिया के तदारक के लिए बहुत से प्रोग्राम और मनसूबे तरतीब दिए हैं. आइए इस वक्त महकमे के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर मुख्तार हुसैन सैयद का पैगाम सुनते हैं. अस्सलाम वालेकुम. मैं सबसे पहले तो आपको ये बताऊं कि निमोनिया पाकिस्तान में बच्चों की मौत का वजह बनने वाली सबसे बड़ी बीमारी है, और उसके लिए पंजाब हुकूमत ने बहुत पहले इसके ऊपर इनिशिएटिव लिए हैं, जिनमें से सबसे पहला इनिशिएटिव ये था पंजाब हुकूमत का कि वो बच्चों में निमोनिया की वैक्सीन जो है ना वो इंट्रोड्यूस कराए. वो वैक्सीन अल्लाह ताला के फजल से बहुत कामयाबी से चल रही है. इस वक्त हमारी जो वैक्सीन की कवरेज है वो 95% से ज़्यादा है. इसी तरह से हमने ये मुमकिन बनाया है कि तमाम हमारे बुनियादी मराकज़ सेहत, हमारे जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे निमोनिया की जो बुनियादी अद्वियात हैं वो 100% वहाँ पे मौजूद होनी चाहिए, जिसको हमने आलमोस्ट मुकम्मल किया हुआ है, और उसके ऊपर हम मुकम्मल तौर पे एक तवज्जो रखते हैं. उसके बाद जहाँ तक आगाही की मुहिम है, इसके ऊपर आपको शायद बहुत साल पहले हमने इसके ऊपर बहुत सारे सेमिनार किए, बहुत सारी उसके ऊपर ट्रेनिंग्स कराई लोगों की. निमोनिया की बीमारी के लिए जितना हमसे हो सकता था वो हमने किया. हमारे डॉक्टर्स ट्रेंड हुए, नर्सेज ट्रेंड हुई, डिस्पेंसर्स तक हमने उसके ऊपर ट्रेंड किए. और फिर उसके बाद हमने एक मुकम्मल तौर पर ब्रोशर्स बना के लोगों को भेजे, अखबारों में इश्तिहार दिए और लोगों की आगाही पैदा की. अब जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त हम जो है ना 5 ज़िलों में खसूसी कैंपेन करने जा रहे हैं, जो निमोनिया के हवाले से होगी, जिसमें हम कुछ नई चीज़ें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. जैसे पहले हम जिंक सिरप की शक्ल में देते थे, अब हम उसको टेबलेट, डिस्पर्सिबल टेबलेट की शक्ल में देंगे, जो बच्चे के मुंह में जाके खुद ब खुद घुल जाएगी. इसी तरह से हम ऑक्सीसिलीन देंगे, फिर हम पल्स ऑक्सीमीटर्स देंगे. तो इस तरह से हम ये बहुत सारी इनोवेशंस कर रहे हैं, और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे हर बुनियादी मरकज़ सेहत के ऊपर, जो ख़ास तौर पर ये 5 अजला हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन सप्लाई 100% मुहैया की जाए. अवाम की आगाही के लिए एक तो हम टीवी के ऊपर अपने मुख्तलिफ़ किस्म के एडवर्टीज़मेंट्स लॉन्च करने जा रहे हैं, जो लोगों को इसके ऊपर आगाही देगी. दूसरा, हमने हमारे पास एक पूरी एक किस्म की यूँ समझ लें कि बुनियादी एक स्ट्रक्चर है लेडी हेल्थ वर्कर्स का, जो हर 1500 की पॉपुलेशन के ऊपर है. उसके ज़रिए हम लोगों तक अपना पैगाम एक एक घर तक पहुंचाएंगे कि किस तरह से निमोनिया को हमने कंट्रोल करना. हमारा लोगों के लिए ये मशवरा है कि जब भी किसी बच्चे को बुखार, तेज़ बुखार और साथ सांस की तकलीफ़ हो तो वो फौरी तौर पर अपने नियर बाई डॉक्टर के पास जाएँ और उससे इलाज करवाएं. किसी भी ऐसे हकीम या क्वैक के पास ना जाएं जो उनकी बच्चे की मौत का सबब बन जाए. इंशाअल्लाह ताला हम ये कोशिश करेंगे कि अगले 5 सालों में कोई भी बच्चा निमोनिया की वजह से ना मरे. निमोनिया के तदारक के हवाले से अभी आपने डायरेक्टर जनरल हेल्थ हुकूमत पंजाब डॉक्टर मुख्तार हुसैन सैयद की गुफ्तगू सुनी. गुफ्तगू मुख्तसर मगर जामे थी, लेकिन याद रखिए कि कोई भी काम हुकूमत तने तनहा नहीं कर सकती.
इस सिलसिले में फ़र्द और ग्रोह की सूरत में हमें अपना अपना किरदार अदा करना है। इंशाअल्लाह ताला अगर कोशिशें इसी तरीके से जारी रहीं तो वक्त दूर नहीं जब हम मुकम्मल तौर पर निमोनिया से छुटकारा हासिल कर लेंगे इंशाअल्लाह। अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। आपके बच्चे की जिंदगी अनमोल है। पैदाइश से लेकर 2 साल से कम उम्र तक के हर बच्चे को पोलियो, काली खांसी, हेपाटाइटिस बी, टीबी, तशन्नुज, गर्दन तोड़ बुखार, खनाक, खसरा और निमोनिया जैसी मोहलिक बीमारियों से बचाव के हिफाजती टीके शेड्यूल के मुताबिक जरूर लगवाएं और इनकी हंसती मुस्कुराती जिंदगी महफूज बनाएं। हिफाजती टीकों का शेड्यूल कुछ इस तरह है। पैदाइश के फौरन बाद पोलियो के कतरों की पहली खुराक प्लस BCG का टीका। 1.5 माह की उम्र में पोलियो के कतरों की दूसरी खुराक के साथ पेंटावैलेंट और नीमोकोकल वैक्सीन का पहला टीका। 2.5 माह की उम्र में पोलियो के कतरों की तीसरी खुराक के साथ पेंटावैलेंट और नीमोकोकल वैक्सीन का दूसरा टीका। 3.5 माह की उम्र में पोलियो के कतरे और टीका प्लस पेंटावैलेंट और नीमोकोकल वैक्सीन का तीसरा टीका। 9 माह की उम्र में खसरे का पहला टीका। 15 माह की उम्र में खसरे का दूसरा टीका। हिफाजती टीकों का कार्ड हमेशा संभाल कर रखें। हिफाजती टीके करीबी मरकज़े सेहत, सरकारी अस्पतालों या इलाकाई वैक्सीनेटर से मुफ्त लगवाए जा सकते हैं। बच्चों के हिफाजती टीकाजात एक सेहतमंद शुरुआत। शिकायत या मजीद मालूमात के लिए 0800 990 00 पर मुफ्त कॉल करें। महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर, हुकूमत पंजाब। जिंदगी के कुछ लम्हों को याद रखने के लिए हम कैलेंडर पर तारीख नोट कर लेते हैं, जैसे शादी की सालगिरह, बच्चे का पहला कदम, पहला लफ्ज। इसी तरह पैदाइश से लेकर 15 माह की उम्र तक के हर बच्चे को 6 बार हिफाजती टीके बमुताबिक शेड्यूल लाजमी लगवाएं। हिफाजती टीके करीबी मराकज़ सेहत, सरकारी अस्पतालों या इलाकाई वैक्सीनेटर से मुफ्त लगवाए जा सकते हैं। मजीद मालूमात और रहनुमाई के लिए मुफ्त कॉल करें। हुकूमत पंजाब। पैदाइश से लेकर 15 माह की उम्र तक के हर बच्चे को 6 बार हिफाजती टीके बमुताबिक शेड्यूल लाजमी लगवाएं। पहली बार पैदाइश के फौरन बाद, दूसरी बार 1.5 माह की उम्र में, तीसरी बार 2.5 माह की उम्र में, चौथी बार 3.5 माह की उम्र में, 5वीं बार 9 माह की उम्र में, छठी बार 15 माह की उम्र में। हिफाजती टीके करीबी मराकज़ सेहत, सरकारी अस्पतालों या इलाकाई वैक्सीनेटर से मुफ्त लगवाए जा सकते हैं। मजीद मालूमात और रहनुमाई के लिए मुफ्त कॉल करें। हुकूमत पंजाब। खुशखबरी है बेटा, ये लो मुंह मीठा करो। पर बेटा पहले एक वादा। कैसा वादा? ये बताएंगी कम्युनिटी मिडवाइफ। हमल के दौरान साइमा के मुकम्मल चेकअप का वादा। चेकअप माँ और बच्चे की सेहत के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन कहाँ से? किसी लेडी हेल्थ वर्कर, कम्युनिटी मिडवाइफ, लेडी हेल्थ विजिटर या डॉक्टर से। पहला चेकअप मैं अभी कर देती हूँ। इसमें साइमा का ब्लड प्रेशर, पेशाब का टेस्ट, खून की कमी, खुराक और बच्चे का भरना देखेंगे। बाकी चेकअप कब कराने होंगे? पहला 4 माह से पहले, फिर छठे, 8वें और 9वें महीने। और हाँ, माँ को तशन्नुज के टीके भी जरूर लगवाएंगे। ये तो हम जरूर कराएंगे। तो फिर हो जाए मुंह मीठा। क्यों नहीं? पोती का टीका मुबारक हो आपका बहन। खैर मुबारक बहन, खैर मुबारक। लो मुंह मीठा करो। असल खुशी तो हमारी शहजादी की है। ले आप इसका मुंह मीठा गले। बहन इससे तो 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध देना है और डब्बे का दूध भी नहीं। यानी अब हमें डब्बे के दूध की नहीं, साइमा की अच्छी खुराक की फिक्र करना है। और 6 महीने के बाद? खाला जी 6 महीने के बाद माँ के दूध के साथ नर्म ग़िज़ा भी शुरू कराएं, जो कि घर के दाल दलिया से बनी हो। और इसके साथ साथ कम से कम 2 साल तक माँ का दूध जारी रखना है। सही कहती हो बेटी।
इसका जिक्र तो कुरान पाक में मौजूद है। अब कुछ हमारे खाने को भी हो जाए। बच्चे की सेहत घर को बनाए जन्नत। ज़चकी एक औरत की जिंदगी का सबसे अहम मगर नाजुक मरहला होता है। आम दाई को पता नहीं होता कि पेचीदगियों से कैसे निपटना है, जबकि माहिर ज़चकी को महफूज ज़चकी के बारे में बाकायदा सिखाया जाता है। ये भी कि अगर कोई पेचीदगी हो जाए तो क्या करना चाहिए। डॉक्टर, नर्स, LHV और मिडवाइफ माहिर ज़चकी है। पता करें अपने इलाके की माहिर ज़चकी के बारे में और अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। बाजी, कैसे आना हुआ? तुम्हारे हामला होने की खुशखबरी सुनी तो रहा नहीं गया, सोचा तुम्हारी खैरियत पता करने चली आऊं। माशाल्लाह, अली तो सेहतमंद और तंदुरुस्त है। हाँ, अल्लाह का शुक्र है, और क्यों ना हो। अली की पैदाइश से पहले मैंने अपना और अली का बहुत ख्याल जो रखा है। वक्त पर टीबी मुआयना और बच्चे की पैदाइश से पहले तैयारी जो कर ली थी। पैदाइश से पहले मुआयना और तैयारी, क्या मतलब? जैसे ही मुझे अपने हामला होने का पता चला, मैंने इलाके की हेल्थ वर्कर से मशवरा किया। उसने मुझे बताया कि वक्त पर मुआयने से दौरान हमल किसी किस्म के मसले का बर वक्त पता चल जाता है और इसका इलाज किया जा सकता है। और तो और बच्चे की पैदाइश की तारीख का भी पहले से पता लग जाता है, जिसकी मदद से हमल और पैदाइश की बर वक्त तैयारी कर सकते हैं और आप बच्चे की पैदाइश से पहले पैदा होने वाले मसाइल हल कर लेते हैं और ज़चकी के दौरान पेश आने वाली मुश्किलात से बच सकते हैं। हेल्थ वर्कर ने मुझे बताया कि मैं दौरान हमल कम से कम 4 बार अपना टीबी मुआयना करवाऊं। मैं लेडी हेल्थ वर्कर के साथ करीबी डॉक्टर के पास मुआयना के लिए गई। डॉक्टर ने मेरा वजन, खून की कमी का मुआयना और ब्लड प्रेशर भी चेक किया। डॉक्टर ने मुझे हिदायत दी कि हमल के दौरान तशन्नुस से बचाव का कोर्स मुकम्मल करना लाजमी है। अच्छा फातिमा बाजी, तो डॉक्टर ने आपको और क्या बताया? उसने मुझे दौरान हमल अपने आराम का खास ख्याल रखने को कहा और मुतवाज़न ग़िज़ा खाने का भी मशवरा दिया। डॉक्टर ने मुझे फौलाद की गोलियां भी खाने को दी। तुम अपना खाना वक्त पर खा रही हो ना? हाँ जी। दौरान हमल वक्त पर मुआयने का मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। डॉक्टर ने मुझे हमल के दौरान ख़तरनाक अलामात के बारे में बड़ी मालूमात दी। इनकी मदद से मैंने दौरान हमल ज़चकी के लिए अपने आप को अच्छी तरह तैयार कर लिया था। और डॉक्टर ने मुझे ये भी बताया कि दौरान हमल अगर अलामात ज़ाहिर हों तो हामला खातून को फ़ौरन किसी बड़े अस्पताल ले जाना चाहिए ताकि इसका बर वक्त इलाज हो सके। कौन सी अलामात? दौरे पड़ना, खून जारी होना, सर में दर्द, हाथों पांव और चेहरे पर सूजन और नज़र का धुंधलाना। अच्छा फातिमा बाजी, तो ये बताएं कि बच्चे की पैदाइश के लिए तैयारी क्या करनी चाहिए? सुरैया, मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनो। ज़चगी सिर्फ डॉक्टर, नर्स, लेडी हेल्थ विजिटर या कम्युनिटी मिडवाइफ से ही करवानी चाहिए, क्योंकि सिर्फ यही ज़चकी के लिए तरबियत याफ्ता है। किसी गैर तरबियत याफ्ता से ज़चकी करवाना ख़तरनाक हो सकता है। इसके अलावा इस बात को यकीनी बनाओ कि हंगामी सूरत हाल में तुम्हारे पास अस्पताल जाने के लिए गाड़ी का इंतज़ाम हो। मैंने तो पहले से ही पैसे जमा करना शुरू कर दिए थे ताकि ज़चकी के वक्त मेरे पास पहले से ही पैसों का इंतज़ाम हो। मैं तो तुमसे यही कहूँगी कि तुम आज से ही कुछ ना कुछ रकम बचाना शुरू कर दो ताकि ज़चकी के वक्त तुम्हारे पास रकम का बंदोबस्त हो। जी बाजी, ये तो मैं पहले से ही कर रही हूँ। बहुत अच्छी बात है। तुम्हें तो पता है अली की पैदाइश के वक्त मेरा बेटा उमर 4 साल का था। ज़चकी के वक्त इसका ख्याल कौन रखेगा, इसका बंदोबस्त भी पहले से कर रखा था। मेरे साथ अस्पताल कौन जाएगा, इसका बंदोबस्त भी मैंने पहले से कर रखा था। डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक मैंने ये भी मालूम कर लिया था कि रिश्तेदारों में से किसके खून का ग्रुप मेरे ग्रुप से मिलता है ताकि ज़रूरत पड़ने पर खून हासिल किया जा सके।
اچھا، یہ تو بہت خاص اور اہم باتیں ہیں، ان پر عمل ضرور کرنا چاہیے۔ یہی نہیں، میں نے تو اس بات کا بھی پہلے سے بندوبست کر لیا تھا کہ زچگی کے وقت میرے پاس صاف کٹ موجود ہو۔ میں نے اپنا اور بچے کا بھی ایک صاف جوڑا زچگی کے لیے پہلے سے تیار کر رکھا تھا۔ واہ باجی، آپ تو بہت سمجھدار نکلی۔ میں آپ کی بتائی ہوئی تمام ہدایات پر انشاءاللہ ضرور عمل کروں گی۔ جی، ان تمام ہدایات پر عمل کرنے سے ہی ہر عورت اپنے زچگی کے عمل کو آسان اور محفوظ بنا سکتی ہے۔ حمل کے دوران لیڈی ہیلتھ ورکر کے ساتھ رابطے میں رہنا نہایت ضروری ہے۔ قدرت کرتی ہے نشو و نما، فطرت کی آغوش میں قطرہ قطرہ دوڑتا ہے رگوں میں، تو پروان چڑھتی ہے ایک توانا زندگی۔ ماں کے دودھ میں فطرت نے رکھی ہے آپ کے بچے کی صحت اور بھرپور نشو و نما۔ ماں کا دودھ، غذا بھی، شفا بھی اور حکم خدا بھی۔ فارمولا ملک ہرگز ماں کے دودھ کا نیم البدل نہیں۔ بچوں کو ان کے قدرتی اور پیدائشی حق سے محروم نہ کریں۔ پروٹیکشن آف بریسٹ فیڈنگ اینڈ ینگ چائلڈ فیڈنگ ترمیمی ایکٹ پنجاب 2012 کے تحت شعبہ صحت کے کارکنان اور ڈاکٹرز کی جانب سے والدین کو بچوں کے لیے ڈبے کا دودھ تجویز کرنا قانوناً جرم ہے۔ IRMNCH اینڈ نیوٹریشن پروگرام، محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر، حکومت پنجاب۔ مبارک ہو۔ خیر مبارک۔ اب بچے کے ساتھ ماں کی صحت کا خیال کرنا تمہارا فرض ہے۔ تبھی میں بچے کے لیے سب سے مہنگا ڈبے کا دودھ لایا ہوں۔ ہرگز نہیں، ڈبے کا دودھ ہرگز ماں کے دودھ کا متبادل نہیں۔ بچے کو 2 سال تک ماں کا دودھ پلانا نہ صرف حکم الہی ہے، بلکہ بچے کی اچھی صحت اور اس کے بھرپور نشو و نما کے لیے بے حد ضروری ہے۔ ماں کا دودھ، غذا بھی، شفا بھی اور حکم خدا بھی۔ شکایات یا مزید معلومات کے لیے ہیلتھ لائن پر مفت کال کریں 0800 99 000۔ محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری بچوں کی صحت مند زندگی کو یقینی بنانے اور نوزائیدہ بچوں کی شرح اموات میں کمی لانے کے لیے حکومت پنجاب کا انقلابی قدم پروٹیکشن آف بریسٹ فیڈنگ اینڈ ینگ چائلڈ فیڈنگ ترمیمی ایکٹ پنجاب 2012 کا نفاذ۔ اس قانون کے تحت شعبہ صحت سے تعلق رکھنے والے افراد اور ڈاکٹرز بچوں کو بغیر کسی معقول وجہ کے فارمولا ملک یعنی ڈبے کا دودھ تجویز کرنے کے مجاز نہیں ہیں۔ کسی بھی طبی مرکز یا ہسپتال میں بلا وجہ دودھ کی بوتل، فیڈر اور ڈبے کا دودھ استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف پروٹیکشن آف بریسٹ فیڈنگ اینڈ ینگ چائلڈ فیڈنگ ترمیمی ایکٹ پنجاب 2012 کے تحت جرمانے یا قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ یاد رکھیں، فارمولا ملک یعنی ڈبے کا دودھ ہرگز ماں کے دودھ کا نیم البدل نہیں۔ ماں کا دودھ، غذا بھی، شفا بھی اور حکم خدا بھی۔ شکایات یا مزید معلومات کے لیے ہیلتھ لائن پر مفت کال کریں 0800 99 000۔ محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر، حکومت پنجاب۔ ماں ہے تو سب کچھ ہے۔ صوبے بھر کے دیہی علاقوں میں دوران زچگی ماں اور بچے کی صحت و سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب محمد شہباز شریف کی خصوصی ہدایات پر جذبہ خدمت کی ایک اور تابندہ مثال محفوظ ماں ایمبولینس سروس کا آغاز۔ بوقت ضرورت ایمرجنسی ہیلپ لائن 1034 پر رابطہ کریں۔ کال موصول ہونے کے بعد مرکزی کال سینٹر فوری طور پر آپ کے علاقے میں موجود ایمبولینس کو ہدایات جاری کرے گا۔ جی سر، میں سمجھ گیا، ابھی پہنچ رہا ہوں۔ یہ ایمبولینس فوری طور پر آپ کے گھر پہنچے گی اور بنا کسی معاوضے کے حاملہ خاتون کو بالکل مفت نزدیک ترین مرکز صحت پہنچائے گی۔ پیچیدگی کی صورت میں مریضہ کو اسی ایمبولینس کے ذریعے تحصیل یا ضلعی ہیڈ کوارٹر ہسپتال بھی منتقل کیا جائے گا۔ 24 گھنٹے بلا تعطل اور بلا معاوضہ دستیاب۔ محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر، حکومت پنجاب۔ کینگرو مدر کیئر۔ اچھا بہن، یہ بتاؤ کہ بہو کی خوشخبری کب آ رہی ہے؟ خیر سے 7واں مہینہ شروع ہو گیا، جلد منہ میٹھا کرواؤں گی۔ اللہ خیر، اللہ خیر۔ اماں اماں اماں، بھابھی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے۔ مبارک ہو، آپ لوگوں کو بیٹا ہوا ہے، لیکن کیا ڈاکٹر صاحبہ؟ وقت سے پہلے پیدائش ہونے کی وجہ سے بچے کا وزن بہت کم ہے اور کم وزن میں بچوں کا درجہ حرارت بھی کم ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔
बच्चे की जान जा सकती है। आपके बच्चे को इंक्यूबेटर की ज़रूरत है। ये सहूलत शहर के बड़े अस्पताल या किसी अच्छे प्राइवेट अस्पताल में दस्तयाब होगी। Prematurity and low birth weight newborns are prone to hypothermia and have 20 times increased risk of death. In Punjab, annually more than 600,000 babies are born with low birth weight, which contributes to more than 38,000 deaths of neonates every year. The province has to go a long way in reducing neonatal mortality from current level of 63 to less than 12 per 1,000 live births by 2030 to achieve sustainable development goals. Majority of the premature and low birth weight babies can be saved from hypothermia by implementing a no-cost intervention of kangaroo mother care practice, which also provides the opportunity to promote early initiation of breastfeeding and reduce unnecessary burden on the high-cost incubator care. Implementation of government's recent health reforms have increased institutional deliveries up to 78%. This opportunity may be utilized to train the mothers for practicing kangaroo mother care. Once that is KMC is accepted by health facilities and medical professionals, it will be easier to extend the approach to the community level. In KMC, the newborn is held firmly with the mother's body, just like a kangaroo mother holds her baby. The newborn gets adequate warmth from the mother's body, and the mother gets chance to breastfeed her baby more frequently. UNICEF supported a group of 6 doctors and nurses from Services Hospital Lahore for KMC training in Vietnam in June 2016. The group had the chance to get practical knowledge on kangaroo mother care and interact with the KMC practicing mothers. After completing the training, in August 2016, the group of doctors trained at Vietnam initiated KMC implementation at Services Hospital Lahore, organized trainings and provided technical support to scale up the intervention. First KMC case was handled by Professor Dr. Rubina Sohail, Head of Gynae Obs Department, Services Institute of Medical Sciences in August 2016. जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान में नौमौलूद बच्चों की शरह वात बहुत ज़्यादा है। यूनिसेफ ने हमको अप्रोच किया और यूनिसेफ के साथ काफ़ी सारी डिस्कशंस हुई, जिनके अंदर ये बात की गई कि यूनिसेफ क्या रोल प्ले कर सकता है हमारे साथ मिलके, डॉक्टर्स के साथ, नर्सेस के साथ और हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ मिलके क्या रोल प्ले कर सकता है कि हम लोग कोई ऐसी इंटरवेंशन लाएं जिससे हम न्यूबॉर्न बच्चों की शरह वात को कम कर सकें। तो उसके ऊपर हमने कैंगरू मदर केयर के बारे में सोचा, और कैंगरू मदर केयर एक ऐसी इंटरवेंशन है जो कि दुनिया भर में प्रूवन है, जिसके रिजल्ट्स जो है वो ऑलरेडी मौजूद हैं। In kangaroo mother care practice, a baby immediately after birth is kept close to mother with skin-to-skin contact, and mother enjoys the love and touch. She forgets her pain, contrary to helplessly waiting for her baby in the incubator as per previous routine. मेरा नाम नौरीन है। मेरे बच्चे का वज़न बहुत कम था। अस्पताल गए, डॉक्टर साहिबा ने कैंगरू मदर केयर के बारे में बताया। पहले तो मुझे बड़ा अजीब लगा, लेकिन ये वाकई बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। मेरा बच्चा मेरे जिस्म के बिल्कुल साथ है और मैं इसको महसूस कर सकती हूँ। कैंगरू मदर केयर के इस्तेमाल से हमें इंक्यूबेटर की ज़रूरत नहीं पड़ी। डॉक्टर साहिबा और नर्स ने हमारे साथ बहुत ताउन किया और हमें सब कुछ सिखा भी दिया। अब मैं अपने बच्चे का घर पर अच्छे तरीके से ख्याल रख सकूँगी। So far, at Services Hospital Lahore, 155 low birth weight babies have successfully been handled through KMC. The experience offered promising opportunity to scale up and extend the services in far-flung areas. Till date, more than 80 healthcare providers, including doctors and nurses, have been trained on KMC. The hospital is the KMC Training Resource Center to scale up the initiative in the province. अरे बहन, बहुत मुबारक हो तुम्हें पोते की। देखो कैसा तेज निकला, वक्त से पहले ही आ गया। खैर मुबारक है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। पैदाइश के वक्त बच्चे का वजन सिर्फ 1.5 किलो था। डॉक्टरों और नर्सों की निगरानी में बच्चे को माँ के जिस्म के साथ लगाकर गर्म रखा गया। नर्स ने भी बड़ी मदद की, सब कुछ सिखा दिया। अब खैर से मेरी बहू खुद बच्चे की देखभाल कर सकेगी और माँ का दूध पिलाकर मेरा पोता बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हम सब भी साथ देंगे और चेकअप में डॉक्टर की हिदायत पर अमल करेंगे।
This is a major step to overcome high neonatal mortality in the country and promise health prosperity. और माएं अपने बच्चों को दूध पिलाएं पूरे 2 बरस। माँ के दूध में मौजूद विटामिन्स, प्रोटीन्स और एंटीबॉडीज बच्चे को देते हैं भरपूर ज़हनी जिस्मानी नशोनुमा और करते हैं बीमारियों और इन्फेक्शन से हिफाजत, और माँ रहती है छाती के कैंसर और हड्डियों के भुरभुरेपन से महफूज। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर बच्चों के इस पैदाइशी हक को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए कानून साजी की गई है, जिसके तहत फार्मूला मिल्क की माँ के दूध के नेमुल बदल के तौर पर तशहीर, फरोख्त और बिला जवाज तजवीज़ कानूनन जुर्म है। माँ की सहूलत के लिए अस्पतालों, काम करने की जगहों और अवामी मुकामात पर ब्रेस्ट फीडिंग कॉर्नर्स का कयाम अमल में लाया जा रहा है। माँ का दूध, माँ और बच्चे की सेहत महफूज। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर, हुकूमत पंजाब। माँ और नौज़ायदा बच्चों की जिंदगी को लाहक खतरात में सबसे ज्यादा खतरनाक मर्ज तशन्नुज है, और इसकी बुनियादी वजूहात में नाक़िस और गैर मयारी तरीके से ज़चगी, हिफाजती टीकों का न लगवाना और नौज़ायदा बच्चे की नाफ की तिब्बी उसूलों के मुताबिक एहतियात न करना शामिल है। आलमी इदारा सेहत के अंदाजे के मुताबिक 1988 में 7,87,000 नौज़ायदा बच्चे तशन्नुज की वजह से मौत के मुंह में चले गए। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने 1989 में फैसला किया कि साल 1995 तक नौज़ायदा बच्चों में तशन्नुज की बीमारी का खात्मा कर दिया जाएगा। इसी अज़्म का इआदा करते हुए नौज़ायदा बच्चों के साथ साथ माओं में भी तशन्नुज के खात्मे के लिए साल 2005 को हदफ बनाया गया, जिसे बाद में 2015 कर दिया गया। मगर साल 2015 के इख्तिताम तक भी ऐसे 21 ममालिक अभी बाकी थे जहां तशन्नुज का खात्मा न हो सका, और इन ममालिक में पाकिस्तान भी सर फहरिस्त था। साल 1990 में तशन्नुज की वजह से पाकिस्तान में 36,300 अमवात हुई, और उनमें से 50% अमवात सिर्फ सूबा पंजाब में थी। माँ और नौज़ायदा बच्चों में तशन्नुज के खात्मे का प्रोग्राम साल 2001 में ऐसे अजला से शुरू किया गया जहाँ की आबादी को ज्यादा खतरात लाहक थे। पिछले 15 सालों से यूनिसेफ की तकनीकी और माली मुआवनत से तशन्नुज से बचाव की खुसूसी वैक्सीनेशन मुहिम के बेहतरीन नताइज बरामद हुए, और इसकी बदौलत पंजाब में माँ और नौज़ायदा बच्चों में तशन्नुज के खात्मे के अहदाफ मुकम्मल हुए हैं। नवंबर 2016 में पंजाब में आलमी इदारा सेहत और यूनिसेफ के माहिरीन ने मुकम्मल जांच पड़ताल के बाद सूबा पंजाब में तशन्नुज के खात्मे की तस्दीक कर दी। चिल्ड्रन वार्ड में एक कमरा हुआ करता था जिसका नाम टेटनस रूम था, और उस तारीक कमरे में बेशुमार बच्चे दाखिल हुआ करते थे। बहुत सारी माएँ रोती हुई अपने बच्चों की लाशें को लेकर जाया करती थी। अब बहुत कम केसेस इसके रिपोर्ट होते हैं पंजाब से, और बहुत ही कम शाद नाज़री को मार होएगी कि उसका बच्चा इस बीमारी की वजह से मर गया है। और इसके लिए मैं समझता हूँ कि वो तमाम लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जिन्होंने किसी न किसी तरीके से इस कार्य खैर में हिस्सा डाला। हुकूमत पंजाब ने माँ और नौज़ायदा बच्चों में तशन्नुज के मुस्तकिल बुनियादों पर खात्मे के मुस्तहकम अज़्म का इजहार किया है। CM रोड मैप के तहत ईवैक मॉनिटरिंग ने तशन्नुज से बचाव के हिफाजती टीकाजात की कवरेज में अहम किरदार अदा किया, जिसकी बदौलत तशन्नुज से बचाव के टीकों की कवरेज 77% से बढ़कर 84% हो गई। बुनियादी मराकज़ सेहत और देही मराकज़ सेहत में 24 घंटे 7 दिन सहूलियात की बिलातातुल फराहमी की बदौलत अस्पतालों में महफूज ज़चगी की शरह 68% से बढ़कर 78% हो गई है। यकीनन इसी तरह पंजाब पोलियो के खात्मे, खसरा पर काबू पाने और दीगर ऐसी बीमारियां जिनसे हिफाजती टीकों के जरिए बचा जा सकता है पर मुकम्मल कंट्रोल और खात्मे के जरिए सेहतमंद कौम और रोशन मुस्तकबिल की तरफ हमेशा गामजन रहेगा। पंजाब में हर 9वां शख्स हेपेटाइटिस बी या सी के वायरस से मुतासिर है। इन मुतासिर अफराद के खून और जिस्मानी रतूबतों के जरिए ये वायरस दूसरों में मुंतकिल हो रहा है। हेपेटाइटिस के फैलाव की सबसे बड़ी वजह सिर्फ लाइल्मी है, और इस लाइल्मी के बाइस मैं, आप और कोई भी शख्स इस मौलिक मर्ज का शिकार हो सकते हैं। अपना शक दूर करने के लिए मैं तो अपना टेस्ट करवा चुका हूँ, आप भी आज ही हेपेटाइटिस बी
और सी का टेस्ट कराएं। मोहतात रहें, महफूज रहें। मजीद मालूमात के लिए हेल्थ लाइन 0800 99 पर मुफ्त कॉल करें। हुकूमत पंजाब। हेपेटाइटिस मोहलिक मगर काबिल इलाज मर्ज है। जानिए सेहतमंद जिंदगी के लिए हेपेटाइटिस बी और सी से बचिए, आज से एहतियात कीजिए। दांतों का चेकअप हमेशा क्वालिफाइड डेंटिस्ट से करवाएं और जरासीम से पाक आलात का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। हजाम से शेव हमेशा नए ब्लेड से ही बनवाएं। खवातीन नाक कान छिदवाते वक्त जरासीम से पाक आलात का इस्तेमाल करवाएं। जरूरत के वक्त 100% तस्दीक शुदा खून ही लगवाएं। हामला माएँ अपना हेपेटाइटिस बी का टेस्ट जरूर करवाएं और हेपेटाइटिस से बचाव के हिफाजती टीके लगवाएं। इंजेक्शन लगाते वक्त हमेशा नई सिरिंज का इस्तेमाल करें। हेपेटाइटिस आगाही हफ्ता 24 से 31 अक्टूबर। इस मुहिम में महकमा सेहत हुकूमत पंजाब का साथ दीजिए। हेपेटाइटिस बी और सी, खुद बचिए, दूसरों को बचाइए। सेहत खिदमत, सेहत इबादत, महकमा सेहत हुकूमत पंजाब। HIV एड्स को फैलने से रोका जा सकता है और अद्वियात के इस्तेमाल से मामूल की जिंदगी गुजारी जा सकती है, लिहाजा एहतियात करें। गैर टेस्ट शुदा खून के इंतकाल से, इस्तेमाल शुदा सिरिंज के जरिए मनशियात के इस्तेमाल से, इस्तेमाल शुदा खून आलूद औजारों के इस्तेमाल से, मुतासरा शख्स के साथ गैर महफूज जिनसी ताल्लुकात से, बच्चे को मुतासरा माँ से। एड्स के इलाज के लिए हुकूमत पंजाब की तरफ से मुफ्त तशखीसी टेस्ट, मुशावरत और अद्वियात की सहूलियात से फायदा उठाएं। मजीद मालूमात के लिए राब्ता करें। उम्मीद जिंदा रखें जिंदगी के लिए। पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर, हुकूमत पंजाब। पाकिस्तान में 1 करोड़ से ज्यादा मुकम्मल तौर पर तंदुरुस्त अफराद थैलेसीमिया के कैरियर्स हैं। थैलेसीमिया कैरियर वालिदैन से थैलेसीमिया मेजर जैसा खून का मोहलिक मौरूसी मर्ज बच्चों में मुंतकिल हो जाता है, जिसमें मुब्तला बच्चे हर माह खून लगवाने के तकलीफदेह अमल से गुजरते हैं। तो शादी से पहले थैलेसीमिया स्क्रीनिंग टेस्ट जरूर करवाएं, क्योंकि यही इससे बचाव का वाहिद रास्ता है। मजीद मालूमात के लिए पंजाब थैलेसीमिया प्रिवेंशन प्रोग्राम के करीबी दफातर या हमारी वेबसाइट विजिट करें। हुकूमत पंजाब। टुगेदर है जी जिंदगी की। आए टीबी के आलमी दिन के मौके पर इस जीत को यकीनी बनाएं। टीबी की मुफ्त तशखीस और इलाज के लिए इस निशान को याद रखें। ख्याल तो इन्हें पहले भी बहुत था मेरा, लेकिन जब से मुझे ज़ियाबीतिस की आगाही हुई है, ये ख्याल कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। अगर आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है, ख़ानदान में किसी को ज़ियाबीतिस का मर्ज़ है और आपका वज़न भी मुकर्ररा हद से ज़्यादा है, तो आज ही ज़ियाबीतिस की तशख़ीस के लिए किसी मुस्तनद डॉक्टर से मशवरा करें। याद रखें, ज़ियाबीतिस के साथ बेहतर ज़िंदगी गुजारने के लिए 3 आसान उसूलों पर अमल करें। डॉक्टर की तजवीज़ करदा दवा, मुतवाज़न खुराक का इस्तेमाल और रोज़ाना 30 मिनट सैर और हल्की वर्जिश को मामूल बनाएं। ज़ियाबीतिस बरवक्त तशख़ीस, आसान इलाज। हुकूमत पंजाब की जानिब से तमाम तहसील और ज़िलाई सतह के अस्पतालों में गैर मुतअद्दी बीमारियों की स्क्रीनिंग और इलाज मुआलजे की मुफ्त सहूलियात मैसर हैं। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर, हुकूमत पंजाब। गैस्ट्रो मेदे और आंतों में सोजिश और इन्फेक्शन की वजह बनने वाला एक मुतअद्दी मर्ज है। आलूदा पानी और खाने पीने की अशिया इसके फैलाव का सबब बनती हैं, लिहाजा पानी हमेशा उबाल कर पिएं। खाना अच्छी तरह पका कर खाएं। खाने के बर्तनों, घर और जाती सफाई सुथराई का खास ख्याल। 800-99-000 पर कॉल करें। गैस्ट्रो से निजात एहतियाती तदाबीर के साथ। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर, हुकूमत पंजाब। एक जिम्मेदार शहरी की क्या है पहचान? एक हुकूमत का क्या फर्ज है? वही जो आपने किया, वही जो हुकूमत पंजाब ने किया। डेंगू का मुकाबला, डेंगू को शिकस्त। हम सब ने मिलकर इस अज़्म को आगे बढ़ाना है। डेंगू की अफजाइश को रोकना है। पुराने टायर, काट कबाड़ और फालतू चीजें तल्फ कर दें। पानी जमा करने के बर्तन, टब, बाल्टी और टैंकी वगैरह को अच्छी तरह ढांप कर रखें। फ्रिज की ट्रे और रूम कूलर को बाकायदगी से खुश्क और साफ करें। डेंगू मच्छर से बचने के लिए मच्छर भगाओ लोशन, कॉइल और मैट का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। कमरों में मच्छर मार स्प्रे करें। पूरी आस्तीन वाला लिबास पहने। माहौल खुश्क और साफ।
डेंगू से मुकम्मल निजात। अपना फर्ज निभा रही है हुकूमत पंजाब, पहले की तरह लाजिम है आपका साथ। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर, हुकूमत पंजाब। इस मौसम बरसात में आपके मोहल्ले में किसी भी जगह डेंगू मच्छर की पैदाइश सबकी सेहत को खतरे में डाल सकती है। तो इस साल भी डेंगू मच्छर के खिलाफ हुकूमती इक़दामात की कामयाबी के लिए आपका ताउन बहुत जरूरी है, क्योंकि हुकूमत के साथ हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम अपने इर्द गिर्द के माहौल को खुश्क और साफ रखें। दरवाजों और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, पानी के बर्तन और वाटर टैंक ढांप कर रखें, काट कबाड़ और पुराने टायर तल्फ कर दें। जानवरों के पानी वाले बर्तन, फ्रिज की ट्रे, रूम कूलर, गमलों और क्यारियों की सफाई का खास ख्याल रखें। दरख्तों में मौजूद सुराखों को रेत से भर दें। डेंगू मच्छर के खिलाफ भरपूर तैयारी हम सब की जिम्मेदारी। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर, हुकूमत पंजाब। स्वाइन फ्लू बड़ी तेजी से फैल रहा है, ठंड भी ज्यादा है, हमें एहतियात की जरूरत है। एहतियात करना ज़रूरी है, मगर इसके लिए मर्ज़ का जानना भी ज़रूरी है। क्या मतलब? मतलब ये कि ये कोई स्वाइन फ्लू नहीं, H1N1 फ्लू है, जो कि मौसमी फ्लू की ही एक किस्म है। इसमें घबराना नहीं चाहिए, एहतियात करनी चाहिए। क्या एहतियात करनी चाहिए? सबसे पहले H1N1 की अलामत से आगाही ज़रूरी है, जिनमें बुखार, खांसी, सर दर्द, पट्ठों और जोड़ों का दर्द, गला खराब होना और नाक का बहना शामिल है। और अलामत ज़ाहिर होने की सूरत में एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए। खांसते या छींकते वक्त नाक और मुंह को टिश्यू पेपर या रुमाल से अच्छी तरह ढांप लें और इस्तेमाल के बाद टिश्यू पेपर को मुनासिब तरीके से ठिकाने लगाएं। साबुन से अच्छी तरह हाथ धोएं। मर्ज़ की सूरत में घर पर आराम करें और आम मेल जोल से गुरेज करें। मुतासरा अफराद और उनके इर्द गिर्द रहने वाले मास्क इस्तेमाल करें। छोटे बच्चे, बुजुर्ग, हामला ख्वातीन और ऐसे लोग जो किसी दायमी मर्ज़ में मुब्तला हों या जिनमें कुव्वत मुदाफ़ियत कम हो, वो ख़ास एहतियात करें ताकि वायरस मुंतकिल ना हो सके। ख़तरे की अलामात यानी सांस लेने में दुश्वारी और तबीयत ज़्यादा ख़राब होने की सूरत में करीबी हस्पताल से रजू करें। बर वक्त एहतियात से सेहत की जीत। मालूमात और रहनुमाई के लिए हेल्थ लाइन 0800-99-000 पर मुफ्त कॉल करें। सेहत खिदमत, सेहत इबादत, महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर, हुकूमत पंजाब। मौसमी फ्लू, जिसे स्वाइन फ्लू कहा जाता था, 100% काबिल इलाज बीमारी है, जिसका वायरस मुतासरा शख्स के खांसने या छींकने से इर्द गिर्द की जगहों पर फैलता है। मर्ज की इब्तदाई अलामात नज़ला जुकाम जैसी हैं, बुखार, खांसी, सर दर्द, पट्ठों और जोड़ों में दर्द, गला खराब होना, नाक का बहना। अपनी और दूसरों की हिफाजत के लिए एहतियाती तदाबीर अपनाएं। याद रहे, हर नज़ला जुकाम का मरीज मौसमी फ्लू का मरीज नहीं होता। मुफ्त तशखीस और इलाज के लिए करीबी जिले या टीचिंग अस्पताल से रुजू करें। 24 घंटे मालूमात और रहनुमाई के लिए डीजी ऑफिस में मौजूद कंट्रोल रूम की हेल्पलाइन 042-992-00970 पर राब्ता करें या 0800-99-000 पर मुफ्त कॉल करें। मौसमी फ्लू से घबराएं नहीं, एहतियात करें। सेहत खिदमत, सेहत इबादत, महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर, हुकूमत पंजाब। आओ सफाई की बात करें, एहतियात करें, दिन रात करें। नहीं है H1N1 हर नज़ला और जुकाम, एहतियात हो तो इलाज आसान सा काम। छींक लगे या नाक बहता जाए, पे जब भी खांसी आए, साबुन से हाथ धोते जाए, खुद भी बचे दूसरों को बचाए। ये बदलता मौसम अच्छा भी है, बीमारियों से मगर बचना भी है। आओ सफाई की बात करें, एहतियात करें, दिन रात करें। बर वक्त एहतियात से सेहत की जीत। 24 घंटे मालूमात और रहनुमाई के लिए डीजी ऑफिस में मौजूद कंट्रोल रूम की हेल्पलाइन पर राब्ता करें या हेल्थ लाइन
पर मुफ्त कॉल करें। सेहत खिदमत, सेहत इबादत, महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर, हुकूमत पंजाब। कोंगो बुखार जानवरों में मौजूद खून चूसने वाली चींटियों के काटने से फैलता है। अवामुन्नास, व्यापारी और कस्साब हजरात खास एहतियाती तदाबीर अपनाएं। मंडियों के मुंतजिमीन, ट्रक, गाड़ियां वगैरह जिन पर जानवर लाद कर लाए जाते हैं उनकी सफाई का खास एहतमाम करें। मवेशी लादने और उतारने के बाद ट्रक में चीचड़ मार स्प्रे करें। जानवर खरीदते वक्त मुकम्मल लिबास पहने, डीट लोशन का इस्तेमाल करें और इस बात का इत्मीनान कर लें कि जानवर चीचड़ियों से पाक हों। बच्चों को बिला जरूरत जानवरों के करीब न जाने दें। अलामात जाहिर होने की सूरत में करीबी मरकज़े सेहत या अस्पताल से रुजू करें। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर, हुकूमत पंजाब। पंजाब में मौजूदा ड्रग टेस्टिंग लैब की तश्कील नौ और पंजाब में जदीद तरीन ड्रग टेस्टिंग लैब के क़याम के हवाले से वज़ीर आला पंजाब ने ड्रग टेस्टिंग लैब लाहौर की तामीर नौ बतौर पायलट प्रोजेक्ट फौरी इक़दामात लिए हैं। मौजूदा ड्रग टेस्टिंग लैब 1970 की दिहाई में कायम की गई थी, जिसमें 8 लेबोरेटरियां मुकम्मल तौर पर बैनुल-अक़वामी मयार के ड्रग टेस्टिंग आलात से आरास्ता थीं। वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक तामीर नौ के इस चैलेंज को कबूल किया गया। अब मुकम्मल तब्दीली की तरफ रवां है। स्टाफ में रद्दोबदल, मुकाबले के इम्तिहान के जरिए 32 साइंसदानों को मुंतखब किया गया है। तज्जियाकारों, एनालिस्ट को मखसूस लेबोरेटरियों के साथ मुंसलिक किया गया है। सफाई से मुतल्लिक स्टाफ की खुसूसी तरबियत की गई है। लेबोरेटरियों में दाखिले के लिए सख्त प्रोटोकॉल तरतीब दिया गया है और इस पर बजरिया बायोमेट्रिक सख्ती से अमल किया जाता है। स्टाफ की तरबियत, एनालिस्ट खवातीन हजरात को आइंदा के लिए मजीद ट्रेनिंग के लिए मुंतखब किया गया है। पहला बैच PFSA के तहत जेर तरबियत है। 2 साइंसदान LGC UK में जेर तरबियत हैं, जो पूरे पंजाब में बहैसियत मास्टर ट्रेनर्स काम करेंगे। लेबोरेटरी मामलात की तश्कील नौ, सैंपल लेने और जमा करने का तरीक़ाकार बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक रखा गया है, जैसे कि इंडेक्स नंबर, एरिया कोड, मंथली कोड, बायोमेट्रिक और तस्वीर के साथ सैंपल पर लगाया जाता है। इस पूरे निजाम यानी सैंपल लेने, आगे भेजने, टेस्टिंग और तज्जिये से लेकर रिपोर्ट की तरतीब तक IT सिस्टम अपनाया जाएगा। अरबों रुपए की लागत से 8 जदीद तरीन लेबोरेटरियां ड्रग टेस्टिंग लैब लाहौर में कायम की गई हैं, जहां बेहतरीन आलात लगाए गए हैं। आइंदा प्लान LGC के साथ SOP और QMS दस्तावेजात के लिए मुआमलात चल रहे हैं। तमाम ड्रग टेस्टिंग लैब एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत राबते में होंगी। ये लेबोरेटरियां बैनुल-अक़वामी एजेंसियों जैसे कि WHO, FDA और UKAS वगैरह की तरफ से मंजूर शुदा होंगी। हुकूमत पंजाब। जाली अद्वियात का घिनौना धंधा करने वाले, मासूम जिंदगियों के साथ मौत का खेल खेलने वाले, इंसानियत के दुश्मन, पाकिस्तान के दुश्मन, सूबे भर से जाली अद्वियात की रोकथाम और मुलव्वस अफराद को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए हुकूमत पंजाब का मिसाली इक़दाम, जनूबी पंजाब टास्क फोर्स और शुमाली पंजाब टास्क फोर्स बराए इंसदादे जाली अद्वियात का क़याम। वज़ीर आला पंजाब मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेरे निगरानी टास्क फोर्सेस की जानिब से जाली अद्वियात बनाने वालों के खिलाफ छापे कामयाबी से जारी हैं और इस मकरू धंधे में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जा रही है। कहीं भी जाली अद्वियात की तैयारी या खरीदो फरोख्त जैसा घिनौना जुर्म होता देखें तो फौरन हेल्पलाइन 0800-02-345 पर इत्तला दें। महकमा सेहत, हुकूमत पंजाब। सेहतमंद जिंदगी, सेहतमंद मुआशरा। जनूबी पंजाब के आवाम के लिए बैनुल-अक़वामी मयार के हामिल तिब्बी सहूलियात, हुकूमत पंजाब की इंसान दोस्ती का मुंह बोलता सबूत। रजब तैयब अर्दगान अस्पताल मुजफ्फरगढ़ 500 बिस्तर के तोसी मंसूबे के पहले मरहले में 250 बिस्तरों के इजाफे का संग बुनियाद। बैनुल-अक़वामी मयार के हामिल इस अस्पताल की गुंजाइश 100 बिस्तरों से बढ़ाकर 350 बिस्तर की जा रही है। इमरजेंसी, OPD, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, रिहेबिलिटेशन सेंटर, शोबा इत्तफाल, जच्चा व बच्चा, ICU, ब्लड बैंक, मुफ्त अद्वियात, मुफ्त खाना। हुकूमत पंजाब।
खादमे पंजाब रोड मैप फॉर हेल्थ सेक्टर रिफॉर्म के तहत सेहत आमा की बेहतरीन सहूलियात अब हर जगह बाआसानी दस्तयाब। तमाम तहसील और जिला हेडक्वार्टर अस्पतालों में जामिया इस्लाहात का आगाज। स्पेशलिस्ट डॉक्टरों और मेडिकल अफसरों के लिए खसूसी मराती पैकेज का ऐलान। अद्वियात की सप्लाई, तकसीम और स्टॉक के तमाम निजाम की मॉनिटरिंग। मशीनरी और आलात का इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम। खराब मशीनरी और आलात की दुरुस्तगी। इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली और तामीर। अमले की हाजिरी यकीनी बनाने के लिए बायोमेट्रिक हाजिरी का निजाम। नीज बुनियादी और देही मराकज़ सेहत पर डॉक्टर्स, नर्सेज, वैक्सीनेटर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की खाली असामियों पर दस्तयाबी। मखसूस सेंटरों पर जच्चा और बच्चा की देखभाल की सहूलत। वैक्सीनेटर्स और फील्ड स्टाफ की ई ट्रैकिंग। डॉक्टर और अमले की कारकर्दगी की मुसलसल निगरानी और जांच पड़ताल का निजाम। बुनियादी अद्वियात की 100% यकीनी फराहमी। थर्ड पार्टी के जरिए इन सहूलियात की जांच और निगरानी को भी मुमकिन बनाया जाएगा। इसके अलावा इन सहूलियात को यकीनी बनाने के लिए खादमे पंजाब सिटीजन फीडबैक मॉडल के जरिए खिदमात की फराहमी की अज़ खुद निगरानी करेंगे। इलाज बर वक्त, हर जगह, हर वक्त। महकमा सेहत, हुकूमत पंजाब। वतन अजीज के हर फर्द तक बिला तखसीस सेहत आमा की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी वजीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मोहम्मद शहबाज शरीफ का विजन है। इस विजन को अमली जामा पहनाने के लिए गुज़श्ता माली साल में शोबा सेहत के लिए मुख्तस 180 अरब रुपए के मुकाबले में रवां साल शोबा सेहत का कुल बजट 265 अरब रुपए तक बढ़ा दिया गया है, जिसमें से 112 अरब रुपए महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के लिए मुख्तस किए गए हैं। शोबा सेहत को जदीद खतूत पर इस्तवार करने और आवाम की बेहतर खिदमत के लिए महकमा सेहत को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने शोबा सेहत में 4 बड़े मसाइल से नबर्द आजमा होने का बीड़ा उठाया, जिनमें वैक्सीन की कवरेज का कम होना, तरबियत याफ्ता अमले के जरिए जिचगी की सहूलियात तक महदूद रसाई, ग़िज़ाई क़िल्लत की बढ़ती हुई शरह और तेजी से फैलते हुए हेपेटाइटिस चैलेंजेस शामिल थे। इस मकसद के लिए वज़ीर आला पंजाब के हेल्थ रिफॉर्म रोड मैप के तहत एक जामे हिकमत अमली तश्कील दी गई। बजट में इजाफे, जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल, वज़ीर आला पंजाब की जानिब से सहमाही बुनियादों पर स्टॉक टेक मीटिंग्स और हफ्तावार महकमाना जायजे जैसे इक़दामात का नतीजा गिरां कदर बेहतरी की सूरत में सामने आया। दिसंबर 2016 तक बच्चों के हिफाजती टीकाजात की मुकम्मल कवरेज 62% से बढ़कर 82% और तरबियत याफ्ता अमले के जरिए जिचगी की शरह 64% से बढ़कर 78% को पहुंच चुकी है। ग़िज़ाई क़िल्लत के खात्मे के लिए 800 थेराप्यूटिक पॉइंट्स और 40 स्टेबलाइजेशन सेंटर्स कायम किए गए। आलमी इदारा सेहत के 2030 तक हेपेटाइटिस के खात्मे के हदफ की रोशनी में पंजाब हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम के तहत PKLI की जानिब से 24 जिले हेडक्वार्टर अस्पतालों में हेपेटाइटिस सैटेलाइट क्लिनिक्स का क़याम और 100 तहसील हेडक्वार्टर अस्पतालों तक हेपेटाइटिस के इलाज की सहूलियात की तोसी अमल में लाई गई है। प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज की बतरीक़ एहसन फराहमी के लिए 2500 बुनियादी मराकज़ सेहत और 315 देही मराकज़ सेहत की तंजीम नौ के साथ साथ 803 बुनियादी मराकज़ सेहत को 193 खादमे पंजाब रूरल एम्बुलेंसेज फराहम की गई। मराकज़ सेहत पर डॉक्टर्स की कमी को पूरा करने के लिए 1,30,000 तक के खुसूसी पे पैकेज पर मेडिकल ऑफिसर्स की तैनाती अमल में लाई गई। 14 मुंतखब अजला में बुनियादी मराकज़ सेहत पर बेहतर इंतजामात के लिए पंजाब हेल्थ फैसिलिटीज मैनेजमेंट कंपनी की तश्कील अमल में लाई जा चुकी है। हुकूमत पंजाब की जानिब से सूबे के तमाम तहसील और ज़िले हेडक्वार्टर अस्पतालों की तंजीम नौ का जामे मनसूबा बनाया गया है। अपनी नौयत के इस पहले मंसूबे के लिए 36 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। दिसंबर 2017 तक 40 तहसील और ज़िले हेडक्वार्टर अस्पतालों की तजदीद नौ का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। इन अस्पतालों में इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की के साथ साथ बायो और नॉन बायो मेडिकल आलात भी फराहम किए जा रहे हैं। 20 अस्पतालों में CT स्कैन मशीनें नस्ब की जा रही हैं। मारूफ दवासाज इदारों से 6 अरब रुपए मालियत की मयारी अद्वियात की मुफ्त फराहमी को यकीनी बनाया गया है, जो बिला तखसीस मुल्क का वजीर आज़म, वजीर आला, ब्यूरोक्रेट और आम आदमी पूरे एतमाद के साथ इस्तेमाल कर सकता है। नया तिब्बी और गैर तिब्बी अमला भर्ती किया जा रहा है। इन 40 अस्पतालों में अमले की तादाद 6,000 से बढ़कर 13,000 हो जाएगी।
मेडिकल रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम मुतारफ करवाया जा रहा है। आउटसोर्सिंग मॉडल के तहत 7 अहम गैर तिब्बी खिदमात मारूफ निजी कंपनियों के हवाले की जा रही हैं। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की जानिब से वज़ा करदा कम अज़ कम सर्विस डिलीवरी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक इन तमाम हस्पतालों में सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। हेल्थ प्रोटोकॉल्स की स्टैंडर्डाइजेशन के बाद इन तमाम तहसील और ज़िला हेडक्वार्टर हस्पतालों को पंजाब हेल्थ केयर कमीशन से मंजूरी दिलवाई जाएगी। जाली और गैर मयारी अद्वियात के मज़मूम कारोबार के तदारुक के लिए प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड और लाहौर में जदीद तरीन ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री का क़याम अमल में लाया गया। दिसंबर 2017 तक मुल्तान, फैसलाबाद, रावलपिंडी और बहावलपुर में मौजूद ड्रग टेस्टिंग लेबॉरेटरीज की तजदीद व बहाली का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। अद्वियात के मायार को यकीनी बनाने के लिए चीफ ड्रग कंट्रोलर ऑफिस की अज़-सर-ए-नौ तश्कील भी की गई। विफाकी हुकूमत के एजेंडा और वज़ीर आला पंजाब के विजन के तहत खिदमात के एतराफ़, मेहनत पर खिराज तहसीन और काबिल अफराद की हौसला अफजाई के लिए माहाना बुनियादों पर सेहत खिदमत परफॉर्मेंस अवार्ड मुतारफ करवाया जा रहा है। इस मकसद के लिए खातिर खा फंड्स मुहैया किए गए हैं। इस ज़िम्न में डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, इलाज पर मामूर अफराद और खाकरोबों की बेहतर कारकर्दगी की बिना पर माहाना स्क्रूटनी की खातिर जिलों और डिवीजन्स की सतह पर स्क्रूटनी कमेटियां तश्कील दी गई हैं। अवामी खिदमत के जज्बे को फ़रोग देने के लिए बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वालों को नकद इनामात और तारीफी असनाद से नवाजा जा रहा है। हमारा अज़्म शोबा सेहत के हवाले से पंजाब को दूसरे सूबों के साथ साथ खित्ते के दीगर ममालिक के लिए भी मशअले राह बनाना है और हम रोज़ बरोज़ जानिबे मंजिल रवां दवां हैं।